Okay, welcome back everyone. और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। I'll settle down. Okay. Let's go to lesson number 7. आइए हम अपने 7 नंबर के अध्याय पर चले। Yes, sorry, question. Yes, question. Please go ahead. Sir, when we read about the creation, we read that God created man and woman. So whenever I went to preach to a transgender, so they always ask this question: ki, what is about our creation? What your God written into your Bible about this? So what would be my answer that time? Sorry. Say, what is the question? What? Question is, what is written in the Bible about transgender, third gender? Whenever I go to preach them gospel, they do these questions that what is written about our creation. So what would be my answer? Okay. So the Bible is very clear that God created man and woman, male and female. और देखिए बाइबल बड़ी स्पष्टता से इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने नर और नारी को सृजा। But sin came into this world. और पाप इस संसार में आ गया। And because of sin, a couple of things happened. और पाप के कारण कई सारी चीजें हो गई। One is our own thinking got depraved or corrupted. और देखिए हमारा स्वयं का सोच विचार भी दूषित हो गया। So read about this in Romans chapter 1. और हम रोमियो उसके पहले अध्याय में इसके बारे में पढ़ते हैं। Share this verse. Romans chapter 1. रोमियो पहला अध्याय And verse 28. और उसका 28 पद says, even as they did not, okay, you can read it past. Romans 1:28. और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। Right? And then after that it lists all kinds of sinful things. और देखिए उसके बाद में नीचे एक सूची दी गई है जो कि सारे के सारे गलत कार्यों के बारे में है। So one close this. I can't have this video. Okay. I think he will close the video. All right. So one, because man became corrupt in his thinking, और मनुष्य जब अपने विचार में दूषित हो गया, God let them go on to do whatever their corrupt minds would do. परमेश्वर ने उनके अनुचित कामों पर उन्हें छोड़ दिया कि उनके मन के अनुसार वो काम करें। And second, we read in Romans chapter 8. और दूसरा जो कि हम रोमी उसके 8 अध्याय में पढ़ते हैं, Romans 8 verses 20 to 22. और रोमियो 8 उसका 22 वचन से It says that, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। Verse 20 to 22. Yes, 22. So Romans 8, 20 to 22. माफ कीजिएगा 20 से लेकर 22 तक, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। So right now creation is in the bondage or is a slave to corruption right now. और अभी जो सृष्टि है वो पाप के बंधन में या कहें पाप की गुलाम है। But in time to come, it will be delivered from its bondage to corruption. और एक समय आएगा जब पृथ्वी जो है इस दूषितपन से छुटकारा पाएगी। So when God created everything, it was perfect. जब परमेश्वर ने रचना किया था तब सब कुछ सिद्ध था। What was perfection? Male and female. और सिद्धता क्या? नर
और नारी। But because of sin, लेकिन पाप के आने के कारण creation was subject to corruption. और जो सृष्टि थी वो दूषित हो गई। Things in God's creation deviated or began to deviate and continue to deviate from their original design. और परमेश्वर की जो सृष्टि थी जिसका मूल स्वरूप जो था उससे हटती चली गई। In the original creation, there were no earthquakes, no cyclones, there were nothing about people being born with defects and problems in their bodies or minds. None of that was there. और देखिए सृष्टि के आरंभ में ना तो कोई तूफान था, ना भूकंप था, ना भूडोल था, ना ही कोई ऐसा अपंग पैदा हो रहा था, ना ही शरीर के अंदर में किसी कमी के साथ कोई पैदा हो रहा था। But now we are in a time where creation is in bondage to corruption. It's gone, it's deviating from its original design. लेकिन अब हम एक ऐसे समय पे हैं जब सृष्टि पाप की गुलाम है, बंधनों में है, वो अपने मूल स्वरूप से घटती चली जा रही है, दूषित होती चली जा रही है। So that's why people are, they're born with defects, with problems in their bodies and minds. और इसीलिए जब आज लोगों का जन्म होता है, कई बार उनकी देह के अंदर में कमियों के साथ में और अपंगता के साथ वो जन्म लेते हैं। Is that God's will? No. क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? नहीं। What caused it? Because creation is in subject to corruption. और क्या कारण है? सृष्टि पाप के अधीनता में, दूषितपन के अधीनता गुलाम में है। It's going away from its original design. और वो अपने मूल स्वरूप से दूर चली जा रही है। And so that's the second reason why there may be people who have these kinds of tendencies. और यही वो दूसरा कारण हो सकता है कि क्यों इस प्रकार के लोग होते हैं। So one, it's their own corrupt mind. Second, it's the deviation from its original design. और एक जो कि उनका स्वयं का दूषित मन है, दूसरा सृष्टि अपने मूल रूप से पाप में घटती चली जा रही है। In John chapter 9, when Jesus and his disciples, they saw a man who was born blind. और देखिए यूहन्ना 9 अध्याय में जब यीशु और उसके चेलों ने एक व्यक्ति को देखा जो अंधा था जन्म से। The disciples asked, Lord, who sinned? Did this man sin? Did his parents sin? और चेलों ने पूछा, प्रभु किसके पाप, इस मनुष्य के पाप है या इसके माता पिता के पाप के कारण अंधा जन्मा है? And Jesus said, neither this man, but we are here to show the works of God. और यीशु मसीह उत्तर देते हैं, नहीं, दोनों में से किसी का नहीं, लेकिन हम यहाँ हैं कि परमेश्वर के कार्यों को प्रकट करें। And what were the works of God? It's to bring things back to the original design. और परमेश्वर का कार्य क्या है? चीजों को अपने मूल स्वरूप में वापस ले आना। And in this case, it was to give the blind man his sight. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अंधा जो है दृष्टि प्राप्त करता है। So we are here to work the works of God. और हम यहाँ हैं परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए। What are the works of God? To bring things to their original design. और परमेश्वर के कार्य क्या है? वो मूल स्वरूप जो परमेश्वर ने बनाया था, चीजों को वापस उसी स्वरूप में लेकर आना। Yeah. So if you ask why are there people with these transgender ideas or practices, because of two reasons. But what must we do? We must help bring it back to the original design. और देखिए जो प्रश्न आप कर रहे हैं, क्यों ये ट्रांसजेंडर्स हैं, किस प्रकार ये ऐसे कार्य ऐसे क्यों हैं, तो उसके दो कारण है। पहला कि है उनकी मन भ्रष्ट है, दूसरा सृष्टि जो है पाप में गिरती चली जा रही है, लेकिन हम जो है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए वहां मौजूद हैं। Okay? Everyone understood? Thank you, sir. Question? कोई प्रश्न? Any other questions? और कोई प्रश्न है? Okay, let's go to lesson number 7, please. और आइए हम 7वें अध्याय में चलते हैं। And the English notes, it's in page 23. और हिंदी में 24 पेज पर उपलब्ध है। Another part of as we study and study scripture and want to interpret scripture. और देखिए एक और भाग जब हम बाइबल की व्याख्या के बारे में सीख रहे हैं, we must be mindful of
figures of speech that is used in the text. और जो वचन के अंदर में जो अलंकार इस्तेमाल किए गए हैं, हमें उसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है. Like we gave the example, in English language, we use certain phrases, or for example, we say it's raining cats and dogs. और देखिए, जैसे हमने पहले भी उदाहरण लिया था, अंग्रेजी में एक कथन है, कहा जाता है कि कुत्ते बिल्लियों की बारिश हो रही है. So it's not supposed to be understood literally, but it's a figure of speech. It means something different from what the literal meaning is. और देखिए, हमें ऐसा नहीं समझने की आवश्यकता है कि हकीकत में कुत्ते बिल्ली आसमान से गिर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो अलंकार इस्तेमाल किया गया है, उपहास जो इस्तेमाल किया गया है, हमें उसका समझने की आवश्यकता है. So similarly, when we read the Bible, there are figures of speech that are from the Hebrew or the Greek or the Aramaic, and that meant something in the language of the people at that time. और देखिए, वैसे ही जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है कि बाइबल के अंदर में इब्रानी, यूनानी और कई जगह में अरामिक भाषा के कुछ चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि उस समय के लोगों के लिए समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया. So how do we know if something is supposed to be literal or something is a figure of speech? और हम कैसे समझें कि कुछ चीजें बिल्कुल तथ्य मात्र हैं और कुछ चीजें अलंकार में लिखी गई हैं? So our first step should be to take things as though it was literal. और हमें सबसे पहला कदम है, हमें लेना है कि वो सत्य है. But if the literal does not make sense, then we say maybe it's a figure of speech. Then we try to understand the meaning of that figure of speech. और देखिए, यदि शाब्दिक अर्थ हमें उसका मायने नहीं दे रहा है, तब हमें उसके अलंकार को समझने की आवश्यकता है, ताकि हम उस वचन को समझ सकें. Right? And then when we interpret the figure of speech, we should do it in the context of the Bible. और देखिए, जब हम उस अलंकार का अर्थ निकालते हैं, तब हमेशा हमें बाइबल का जो संदर्भ है, उसके अनुसार उसके अर्थ को निकालने की आवश्यकता है. Because the same figure can be used to mean different things in different contexts. And we'll give examples. और मैं आपको जरूर इसके बारे में उदाहरण दूंगा, क्योंकि एक ही अलंकार अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकालता है. So, example. और उदाहरण, John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा दाता, He sees Jesus walking. और वो देख रहा है कि यीशु मसीह चल के आ रहे हैं. He points to Jesus और वो यीशु मसीह की ओर उंगली करते हैं, and he says, "Behold the Lamb of God." और वो कहते हैं, देखो परमेश्वर का मेमना. Was Jesus a lamb? क्या यीशु मसीह मेमना है? No. नहीं. He's using a term, और वो एक तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, the Lamb of God. परमेश्वर का मेमना. That means this is God's perfect sacrifice. और जिसका मतलब है ये परमेश्वर का सिद्ध बलिदान है. In Jeremiah chapter 1, और यिर्मयाह उसके पहले अध्याय के अंदर में, when God is speaking to Jeremiah, जब परमेश्वर यिर्मयाह से बात करता है, Jeremiah 1 verse 18, और यिर्मयाह 1 उसके 18 में लिखा है, God says, Jeremiah, I will make you an iron pillar and like a brass wall. और देखिए, परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, यिर्मयाह देख, मैं तुझे लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाऊंगा. What does it mean? और इसका मतलब क्या है? Is Jeremiah going to become like a iron pillar? और क्या यिर्मयाह लोहे का खंबा बन जाएगा? It's going to become like a brass wall? और या फिर वो पीतल की दीवार के समान बन जाएगा? No, God is using a figure of speech. और देखिए, परमेश्वर यहाँ पे अलंकार का इस्तेमाल कर रहा है, अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है. What could be the meaning? और क्या अर्थ हो सकता है? What does an iron pillar represent? और लोहे का खंबा किसे दर्शाता है? Yeah, talking about strength. It can't be shaken easily. It could be strong. और ये बल को दर्शाता है, आसानी से उसे हिलाया नहीं जा सकता. And like a brass wall, a brazen wall, you cannot be easily pushed over. और एक पीतल की दीवार जिसे आसानी से हिलाया नहीं जा सकता, खसकाया नहीं जा सकता.
right? So think about this in Isaiah 55 verse 12. और यशाया 55 उसके 12 वचन में देखें, Isaiah says, and all the trees of the field will clap their hands. और वहां यशाया कहता है कि सारे जंगल के पेड़ तालियां बजा रहे। Do trees have hands? क्या पेड़ के हाथ होते हैं? No. नहीं। So we shouldn't say, kya, Bible has, it is telling us wrong things. और ये नहीं कहना चाहिए अरे बाइबल तो सारी गलत बातों को कह रहा है। No, it is using a figure of speech. और आप देखें वो अलंकार इस्तेमाल कर रहा है बोलने के लिए। And what would it mean? The trees of the field are clapping their hands. What picture does it give you? और बन के सारे पेड़ ताली बजा रहे हैं, ये आपके मन में कौन सी तस्वीर को दर्शाता है? What does it represent? और ये क्या बतला रहा, क्या दर्शा रहा है? Celebration, praising, that's the picture. If it says trees of the field will clap their hands, it's like there's joy everywhere. और देखिए वो जब वो कहता है कि पेड़ ताली बजा रहे हैं तो वो दर्शा रहा है उत्साह है, आनंद है, हर तरफ आनंद ही आनंद है। Or take for example in John chapter 6. और या तो फिर यूहन्ना 6 अध्याय का उदाहरण ले ले। When Jesus said, you have to eat my flesh and drink my blood. और यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मेरा मांस खाना पड़ेगा और मेरा लहू पीना पड़ेगा। And if you don't do it, you have no parts in me. और यदि ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा मेरे साथ कोई भाग नहीं है। All the people who listened, they said, what happened? They thought Jesus was gone, was a mad person. और यीशु मसीह को जितने भी सुना सोचा कि अरे शायद खिसक गए हैं। He's telling us we have to eat his flesh and drink his blood. और वो हमें अपना मांस खाने के लिए और अपना लहू पीने के लिए कह रहा है। And it says many of them went away. और लिखा है कि बहुत सारे लोग इस बात को सुनकर उसे छोड़कर चले गए। But Jesus was not talking about it literally, you have to eat his flesh and drink his blood. और देखिए यीशु मसीह शाब्दिक रीति से नहीं कह रहा कि उसका मांस और उसका लहू पीने के लिए, But it was figurative, और ये एक अलंकारिक भाषा है जिसका इस्तेमाल कर रहा है, telling us that we have to become so one with him. और वो कह रहा है कि हमें उसमें एक हो जाने की आवश्यकता है, Then we follow him. और तब हम उसका अनुसरण करें। It's just a figure of speech. और ये एक अलंकारिक भाषा है। Right? In the 1 Thessalonians 4, it talks about those who die in Christ. It says they have fallen asleep. और देखिए पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय में 13-15 में पढ़ेंगे तो वो जो लोग मर गए हैं उनके लिए वो कहता है वे लोग सो गए हैं। So does that mean they are all sleeping on the ground? और क्या इसका मतलब सब जमीन के अंदर सो रहे हैं? No, it's just a figure of speech. और सिर्फ एक अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल है, Telling us that one day we will all be raised from the dead. और हमसे ये कहने का प्रयास है कि एक दिन हम सब मसीह यीशु में दोबारा जी उठेंगे। There's a comparison. और देखिए वहां एक तुलनात्मक शब्द है। We go to sleep, then we rise up. और हम सोने जा रहे हैं, हम उठ खड़े होंगे। That's what he's saying. Like when we die in Christ, we're going to rise up. और वैसे ही वो कह रहा है कि जब हम मसीह में मर जाएंगे हम पुनरुत्थान पाएंगे। But some people read that and they say, oh, the dead, they're sleeping, the spirits are floating here, somewhere here. और देखिए कई लोग पढ़ के कहते हैं अरे वो जो मरे हैं ना वो सो रहे हैं, उनकी आत्मा इधर उधर भटक रही है। No, he says our spirits are with Jesus. To be absent from the body is to be present with the Lord. और हमारी आत्मा यीशु मसीह के साथ एक बार देह से निकलकर वो यीशु के सामने उपस्थित होते हैं। Now, so like this, there are many figures of speech that we find in the Old and the New Testament. और देखिए इसी प्रकार पुराने नियम और नए नियम में हम बहुत सारे अलंकारिक भाषा के वचनों को या पदों को पाते हैं। So example, और उदाहरण के लिए Jesus said, if you believe, John 7:37-39, he said, whoever believes in him will have rivers of living water flowing out of his innermost being. और देखिए यूहन्ना 7 उसके 37 से 39 तक में हम पढ़ते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है उसमें से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। That means all of us have rivers flowing out of us. और इसका मतलब हम सब में से जीवन की नदी की जल की नदी बहकर निकलनी चाहिए। What does that mean? और इसका मतलब क्या है? Is it literal or is it figurative? और ये शाब्दिक अर्थ है या अलंकारिक अर्थ है? Figurative. And what does that figure mean?
और ये शाब्दिक है, उसका अर्थ मतलब अलंकारिक है, इसका मतलब क्या है? Okay, so I forgot to mention this. Many times the meaning is given in the text. और कई बार अर्थ जो है वो वचन के अंदर ही दिया होता है. So let's go to John 7. और आइए यूहन्ना 7 में चले. Look at verses 37 to 39. और 37 से 39 तक में हम देखें. And tell me what's Jesus meaning when he says rivers of living water will flow और from मुझे us. बताइए, जब यीशु कहता है कि हमसे जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी, तो उसका मतलब क्या है? Right? What does he say? और क्या कह रहा है? Verse 39. और 39 पद में लिखा हुआ है, 39 में लिखा है, 39 में. So he's referring to the flow of the presence and the power of the Holy Spirit through the believer, that it'll be like these rivers flowing out of us. और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ और उपस्थिति के बारे में बात कर रहा है, जो कि हम विश्वासियों के जीवन में से बह निकलेगी. Right? So that's what he's saying, that the presence and the power of the Holy Spirit flow out of us like rivers of living water. और वही वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ और अधिकार जो है वो विश्वासी के जीवन में एक नदी के समान बहकर निकलेगा. Right? Now, some trick question. और थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न. Sometimes the same figure is used for opposite things. और देखिए, एक ही अलंकार को दो विपरीत बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Jesus is called the Lion of the tribe of Judah. और यीशु मसीह को यहूदा का सिंह कहकर भी पुकारा गया. Satan is also referred to like a roaring lion, seeking whom he may devour. और देखिए, शैतान को भी गरजने वाले सिंह के समान में दर्शाया गया है, वो खोज रहा है कि किसको फाड़ खाए. So same figure, lion, और देखिए, वही अलंकार है सिंह, used for Jesus, used for the devil. और यीशु के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, शैतान के लिए भी इस्तेमाल किया गया है. So how do we understand that? और इसको हम किस प्रकार समझेंगे? What attribute of the lion do we give Jesus? और, And what attribute of the lion do we give to the devil? और सिंह का कौन सा गुण हम यीशु मसीह को देंगे, और सिंह का कौन सा गुण हम शैतान को देंगे? So the lion represents being king of the jungle, authority, dominion. Those are the attributes we ascribe to Jesus. और देखिए, जब हम सिंह को देखते हैं तो जंगल का राजा, अधिकार, उसका दबदबा, वो जितने गुण हैं हम यीशु मसीह को देंगे. The lion coming very stealthily, very suddenly to catch its prey. That is the attribute we give to the devil when it says he's comes like a roaring lion seeking whom he may devour. और देखिए, जब सिंह शिकार करता है तो वो छुपकर दबे पांव अपने शिकार पर हमला करता है. वही गुण जो है हम शैतान को देंगे, क्योंकि उसके बारे में लिखा है वो गरजने वाले सिंह के समान किसी को फाड़ खाने के लिए घूम रहा है. वो गुण हम उसको देंगे. You understanding? आप समझ रहे हैं? Think about one more example. और एक और उदाहरण के बारे में सके. Thief. Paul writes 1 Thessalonians 5 that the Lord, he'll come like a thief in the night. और देखिए, पहला थिस्सलुनीय 5 में पौलुस जो है लिख रहा है कि परमेश्वर का पुत्र जो है दूसरा आगमन उसके चोर के समान रात में होगा. But the same image, thief, is used for the devil. The thief comes to steal, kill and destroy. और लेकिन वही तस्वीर जो चोर की है वो शैतान के लिए भी हो रही है कि चोर चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता है. So what attribute of thief will you give to Jesus? और वो कौन से गुण होंगे जो हम यीशु मसीह को देंगे चोर के? What attribute of the thief you give to the devil?
और चोर के वो कौन से गुण होंगे जो आप शैतान के लिए लागू करेंगे? So like how the thief, when the thief comes in the night, he doesn't say, hey, 12 o'clock, I'm coming to your house. He doesn't announce. He comes without telling us suddenly. और देखिए, चोर जब आता है तो 12 बजे फोन करके नहीं बोलता कि 12 बजे आपके घर आऊंगा, नहीं, चुपचाप से धीमे से वो आपके घर में आता है. Yeah. So that's the attribute that's given. The Lord will come like a thief in the night. और वो जो गुण है वो यीशु मसीह के लिए दिया गया है कि रात्रि में चुपचाप से प्रभु आएगा. But the thief comes to take away what does not belong to him. That's the attribute given to the devil. और लेकिन चोर वो चीजों को चोरी करने के लिए आता है जो उसका नहीं है, वो हम शैतान के लिए लागू करते हैं. You understanding? आप समझ रहे हैं? Okay. So as we read the scriptures and you're seeing these images, we have to be careful how we interpret these images. और देखिए, जब हम वचन का अध्ययन करते हैं और इन जब तस्वीरों को, उदाहरणों को देखते हैं, तो हमें बड़े सावधान होने की आवश्यकता है कि किस प्रकार हम इसका अर्थ निकाल रहे हैं. And also remember, just because the same image is used for Jesus and the devil doesn't mean that Jesus is equal and opposite to the devil. Jesus is much greater than the devil. और इसके साथ साथ इस बात को भी आप हमेशा याद रखिएगा कि जब एक ही तस्वीर यीशु और शैतान के लिए इस्तेमाल की जाती है तो उसके मायने ये नहीं है कि शैतान यीशु के बराबर हो गया या उसके तुल्य हो गया. यीशु मसीह शैतान के बहुत बहुत परे है, बहुत ऊंचा है. Right? And also we have to be careful that we only assign the intended meaning. Don't try to put all other things from the image into the person. और देखिए, केवल जो आकृति से जो अर्थ वहां दिया गया है उसको छोड़कर आप उससे कहीं ज्यादा अर्थ को उस व्यक्ति को देने का प्रयास ना करें. For example, Jesus is a lion of the tribe of Judah. और उदाहरण के लिए कि यीशु मसीह यहूदा का सिंह है. So lion has 4 legs, Jesus has 4 legs. और शेर के 4 पांव हैं तो यीशु के भी 4 पांव हैं. Lion has a tail, Jesus also has a tail. और शेर की तो पूंछ भी है, तो क्या यीशु मसीह की भी पूंछ है? Can't do that. और ऐसा मत करिए. Understanding? आप समझ रहे हैं? So don't take everything that you see in that figure and assign it to the person. और जो कुछ आप उस तस्वीर या आकृति में देखते हैं वो सारी चीजें आप उस व्यक्ति विशेष में जोड़ने का प्रयास मत करिए. So only what was intended. और केवल वही बात जिसके ऊपर में जोर दिया गया, प्रकाश दिया गया है. Now, when we study Bible prophecy, और जब हम बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं, and also when God is speaking to us prophetically by His Spirit, और उसके साथ में जब परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी के द्वारा हमसे बात करते हैं, God again uses these images to speak to us. और परमेश्वर फिर से तस्वीर या आकृति के द्वारा हमसे बात करते हैं. Similarly, in Bible prophecy, you see a lot of images. और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ेंगे तो उसके अंदर में बहुत सारी तस्वीर, आकृति और रूप को हम देख सकते हैं. In a future lesson, we will cover some of Bible prophecy. और देखिए, आने वाला जो पाठ है उसके अंदर में बाइबल की भविष्यवाणियों के कुछ अध्ययन हम करेंगे. So when God speaks to us through visions, through dreams, through prophetically, और जब परमेश्वर स्वप्न, दर्शन या नबूवत की भविष्यवाणी के रूप में हमसे बातें करता है, we have to apply these same principles to interpret what God is speaking. और देखिए, हमें वही नियम का पालन करना है कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है. In Bible prophecy, so let me say this. Always interpret what God is saying using the symbols and the images that are, first of all, already in the Bible. और देखिए, हमेशा उन चिन्हों, उन आकृतियों का इस्तेमाल करें जो पहले से बाइबल के अंदर में मौजूद है. Use that. और आप उनका इस्तेमाल करें. So for example, sometimes, when you're ministering to people, suddenly God gives you, let's say you're praying for somebody and God gives you the image of Joseph. और देखिए, जैसे आप कहीं पर सेवकाई कर रहे हैं, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते समय
परमेश्वर यूसुफ का चित्रण आपके मन में करता है। Now, when you see that image of Joseph, it could mean many things. और जब आप यूसुफ की तस्वीर देखते हैं उसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं। Maybe that person's name is Joseph. और हो सकता है कि उस व्यक्ति का नाम ही यूसुफ हो। Or maybe God is saying, so we have to listen. God, what are you saying? और तो हमें आवश्यकता है परमेश्वर को सुनने के लिए कि परमेश्वर आप क्या कह रहे हैं। In that moment, और उस क्षण में there may be certain attributes about Joseph which God wants you to prophesy and speak to that person. और हो सकता है कि यूसुफ के कुछ गुण होंगे जिनको परमेश्वर चाहता है कि आप उस व्यक्ति के लिए उन गुणों की भविष्यवाणी करें। So maybe God says, he's in for that particular moment. He reminds you of Joseph and says, right now he is in a place like how Joseph was in the prison. और देखिए ये उसी समय उस समय के बारे में है। और परमेश्वर जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि ये यूसुफ के समान जेल खाने में है। But tell him I'm going to bring him out and take him to a place of honor. और लेकिन परमेश्वर कह रहा है आप उससे कह दो कि मैं तुझे जेल खाने से निकाल कर एक ऊंचे स्थान पर खड़ा करूंगा। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? So all you have to do is just say that part that God wants you to say prophetically to that person at that time. और देखिए उस समय पे परमेश्वर भविष्यवाणी के रूप में जितना आपसे कहने के लिए कह रहा है उस समय पर आप केवल उतना ही कहें। Don't go and say, hey, Joseph had a coat of many colors. Yeah, you have coat of many colors. और आप जाके मत बोलिएगा अरे यूसुफ के पास रंग बिरंगा अंग रखा था, तुम्हारे पास रंग बिरंगा है। Don't go into all that. और उन सब में मत पड़िएगा। Only those things at that moment about Joseph that God wants you to say, you say. और उस क्षण के अंदर में यूसुफ के बारे में परमेश्वर जो आपसे चाहता है कि आप कहें उतना ही आप कहिए। Maybe in another situation, you're praying for somebody again, God, the same Joseph comes. और हो सकता है कि दूसरे समय पर आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे फिर से यूसुफ ही आपके दृष्टि में आता है। So, okay, Joseph, God, then you say, God, what about Joseph? Do you want me to say to this person now? और फिर आप परमेश्वर से पूछे प्रभु आपने यूसुफ को दिखाए तो आप क्या चाहते हैं कि मैं इस व्यक्ति से इस समय पर कहूं। So maybe at that time, God highlights something else about Joseph's life that he wants you to prophesy over this person. और हो सकता है कि परमेश्वर यूसुफ के जीवन की कुछ और बात को आपके लिए प्रकाशित करना चाहता है ताकि आप इस व्यक्ति के जीवन में उस बात को उसकी भविष्यवाणी करें। So maybe God is saying, Joseph, just as Joseph was highly favored in his house, this person is highly favored in his house. और जैसे यूसुफ अपने घर में सबसे प्रिय था, अनुग्रह से प्राप्त था, परमेश्वर चाहता है कि आप भी उससे कहें कि तेरे ऊपर में परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है। Or maybe God wants, just as God used Joseph to have influence over the whole land, God will raise him up to have influence over the whole land. Something else. और देखिए जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को पूरे देश के ऊपर में प्रभावित किया, परमेश्वर इसको भी प्रभावित करना चाहता है, इस प्रकार जो परमेश्वर कह रहा है। The point is, लेकिन बिंदु यहाँ पर ये है, the same image और वही तस्वीर can be used in different ways. और अलग अलग रीति से इस्तेमाल हो सकती है। When God is speaking to us and through us prophetically. और जब परमेश्वर हमारे भीतर और हमारे द्वारा भविष्यवाणी के रूप में कार्य करता है। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? Right? So we have to be very attentive because God uses these figures of speech or these figures to speak to us. और देखिए हमें बहुत सचेत होना है, ध्यान रखना है, क्योंकि परमेश्वर इन अलंकार का या इन आकृतियों का इस्तेमाल करता है हमसे और हमारे द्वारा बात करने के लिए। Yeah, and sometimes there may be figures that you don't find in the Bible. और देखिए कई बार ऐसी आकृतियां होती हैं जिन्हें हम बाइबल में ही नहीं पाते हैं। And that's when you need to listen to the Holy Spirit or a word of wisdom to know what does that particular picture or image that you're seeing, what is the meaning God is saying at that time. और देखिए उस समय पर आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, परमेश्वर से सुनने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं उस समय पर किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। Okay? So first you try to see what does that figure mean in the Bible. Of course, many times there may be those images may not be in the Bible. So then you say,
Holy Spirit, what are you saying? Listen to a word of wisdom, and He'll give you the meaning of that picture, that figure of that और He's showing. सबसे पहले आप बाइबल के अंदर में खोजें, और अगर बाइबल के अंदर में वो तस्वीर नहीं मिलती है तब आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। पवित्र आत्मा बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन आपको दे, ताकि उस आकृति या तस्वीर को आप समझ कर दूसरे को बता सकें। Okay? ठीक है, Any questions? कोई प्रश्न? Yes, please. Yes. Okay, pass the mic. पीछे माइक दे दीजिए। Pastor, Gospel according to John, chapter 3, verse 5. Jesus answered, "Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." So I heard pastors preaching that water means the word of God, and some pastors they say water means just water only. That denotes the water baptism. So there are 2-3 versions to the same scripture. So how both seems to be correct. So how do we substantiate with? Is there any other verse to substantiate this verse? Okay. You want to say it in Hindi? और देखिए, यूहन्ना 3 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ब्रदर का प्रश्न ये है कि कई पासवान जल को वचन के रूप में दर्शाते हैं और कई लोग बपतिस्मा के रूप में दर्शाते हैं। तो सही उत्तर क्या है? हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि ये वचन जो कह रहा है उसका अर्थ क्या है? Yeah. So the first thing that we must always do is, what is the context? और देखिए, सबसे पहले चीज हमें जो करना चाहिए वो ये है कि इसका संदर्भ क्या है। You know, what was going on in that conversation? और उस वार्तालाप के अंदर उस समय पर चल क्या रहा है। Right? What was going on? Nicodemus had come to Jesus in the night. और निकोदेमस रात्रि के समय पर यीशु मसीह के पास आते हैं। And, and Jesus tells him, verse 3, unless a man is born again, he cannot enter the kingdom. और तीसरे वचन में यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Then Nicodemus is thinking, और and he says, how can a man enter his mother's womb a second time to be born? और देखिए, निकोदेमस यहाँ सोच में पड़ जाता है कि एक व्यक्ति कैसे दोबारा से अपनी माँ के गर्भ में जाए कि दोबारा से जन्म ले सके। So verse 4 is already giving us context. और चौथा वचन जो है हमें संदर्भ को प्राप्त दे रहा है। Mother's womb. और माँ का गर्भ। What is in the mother's womb? और माँ के गर्भ में क्या है? Fluid, water. और वहां पानी है। Then Jesus says, verse 5. और 5वें वचन पर फिर यीशु कहते हैं, He's building on this. और इसके ऊपर में यीशु मसीह निर्माण कर रहा है। Unless a man is born of water. और जब तक एक मनुष्य जल से ना जन्मे, Context, mother's womb. और देखिए उसका संदर्भ है माँ का गर्भ, And of the Spirit, और उसके साथ आत्मा, he cannot enter the kingdom of God. और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Right? Also, the contrast is when Jesus, verse 3, unless a man is born again, the little meaning is there is, unless a man is born from above. और देखिए तीसरा वचन जो लिखा है, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे, इसका अर्थ ये है कि जब तक एक व्यक्ति ऊपर से ना जन्मे। So being born again literally is to be born from above. और नया जन्म का शाब्दिक अर्थ है ऊपर से जन्म लेना। So that also gives us additional context. He's contrasting being born from above versus being born here on earth. और देखिए यहाँ पर एक और अर्थ हमें समझाता है कि ऊपर से जन्म लेना और दूसरा पृथ्वी पर जमीन पर जन्म लेना। So in its context, the correct interpretation will be born of water, meaning born naturally, born of the womb, and born of the Spirit, meaning born spiritually, born of the Holy Spirit, born from above.
और देखिए यहाँ पर जो अगर हम देखें तो जल से जन्म लेना मतलब स्वाभाविक रीति, गर्भ से जन्म लेना, आत्मा से जन्माने का मतलब है आत्मिक रीति से हमारा जन्म होना। Now, water baptism is nowhere in the picture. और पानी का बपतिस्मा इस तस्वीर में कहीं पर भी नहीं है। So to say born of water means water baptism is not correct. It's not in the context. और देखिए पानी से जन्म लेना, बपतिस्मा कर लेना, ये कोई संदर्भ नहीं है, इसमें कोई जोड़ नहीं है। The other thing we say is, okay, what else does the scripture say और चीज हम कह सकते हैं कि इसके अलावा वचन क्या कहता है about being born again? और नए जन्म लेने के बारे में। So this is where we look at other scriptures. For example, 1 Peter 1:23. और पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 23 वचन देखेंगे। There it says, we are born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which lives and abides forever. 1 Peter 1. और पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। So this is where we have the scripture which says we are born again by the word of God. और यहाँ पर फिर एक वचन इस प्रकार कह रहा है कि हमने वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। And God's word, one of the images of God's word is water. देखिए परमेश्वर के वचन की एक तस्वीर पानी है। John 15 verse 3, Jesus says, you are clean through the word that I've spoken to you. और यूहन्ना 15 उसके 3 में वो कहता है कि तुम मेरे वचन के द्वारा शुद्ध किए गए हो। We also see in Titus chapter 3, और तीतुस उसके 3 अध्याय में भी हम देखते हैं where it talks about being born of the Spirit. और जहां पर वो आत्मा से जन्म लेने के बारे में बात कर रहा है। Verse 5. और उसके 5 वचन में, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। So here we see the agency of the Holy Spirit in being born again. Your regeneration and renewing. Regeneration is another term for being born again. So the work of the Holy Spirit in being born again. और देखिए यहाँ पर जो नए जन्म के बारे में बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाया गया है। So we see the word of God and the Holy Spirit in order to be born again. So therefore, if you go back to John 3:5, and by extension we say, oh, we have to be born of the word and the Spirit. That is correct by extension, but not by the immediate context. It's correct biblically. It's correct. और देखिए जब हम इस बात को देखते हैं कि वचन से और जल से और आत्मा से जन्म लेने की आवश्यकता है, लेकिन जब हम यूहन्ना में जाते हैं, वो 3 में 3 वचन में जो कह रहा है कि जल से और आत्मा से जन्म लेने के लिए, तो वो सही है, लेकिन वो उस समय उस जन्म के बारे में बात नहीं कर रहा है। Right? So what would be the correct interpretation? Natural birth, water, Spirit, Holy Spirit. By extension, we can also say you have to be born by word and the Holy Spirit, which is also biblically correct. और देखिए वो क्या कह रहा है कि हमें स्वाभाविक जन्म भी लेना है, जल यानी कि स्वाभाविक जन्म, आत्मा यानी कि आत्मिक रीति से उसके साथ में जोड़ा जाए, तो हाँ वचन के द्वारा भी हमें जन्म लेने की आवश्यकता है, हमारा उद्धार होता है। But water baptism, as we see in scripture, is always used as a testimony, or it is used as an expression of having been born again. और लेकिन अगर पानी के बपतिस्मा की बात करें तो वो हमेशा वो एक गवाही के वचन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जो हुआ है उसकी गवाही के रूप में बपतिस्मा का इस्तेमाल किया गया है। We don't see water baptism directly as an agency in order for us to be born again. और पानी का बपतिस्मा को हम उद्धार पाने के लिए सीधे रूप से यहाँ नहीं देखते हैं। Those who have been believed, those who have believed and baptized. So you have believed, that means you're born again. Now you're baptized.
So it's a follow-up. और जो विश्वास कर, यानी कि आप विश्वास कर चुके हैं, आप विश्वासी हैं, वो लोग बपतिस्मा लें। Is that clear? Any other question? Yes. 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 Yeah. और देखिए, जब हम अगर जैसे अलंकार या शब्द तस्वीर की बात कर रहे हैं, तो कई बार अगर हम पानी को देखें तो पानी जो है बाइबल के अंदर में बहुत सारी बातों को रखता है। परमेश्वर का आत्मा है ना, वचन के बारे में बात करता है, या आग, पानी जो है नुकसान के बारे में भी बात करता है, बाढ़ के बारे में। तो जो अगर आकृति या तस्वीर हमने देखा है, तो हम कैसे उसको पहचाने कि ये परमेश्वर की ओर से है, वचन से है, या कुछ और है? So one is, of course, we will want to listen to the Holy Spirit. और एक सबसे पहला जो पवित्र आत्मा को हमें सुनने की जरूरत है, because when he's giving us that vision, when he's giving us that or a dream, when he's giving that word to us, he will also give us the meaning, saying, okay, this is what water in this case means. और देखिए, जब वो पवित्र आत्मा हमें दर्शन या तस्वीर देता है, तो उसके साथ साथ वो उसका मतलब भी हमें बताता है कि ये अगर पानी है तो उसका मतलब ये होगा। And the second is what we would understand it from the context, all the other things around it. Okay, so therefore this is what this image means in the context of everything else around it. और दूसरा, हम उसके संदर्भ को समझते हैं, उस तस्वीर के आसपास जो परिस्थिति या संदर्भ बनता है, उसके आधार पर हम उसके अर्थ को समझते हैं। So both these things we use, we understand this is what it is, and then we give the interpretation. और दोनों चीजों को समझने के बाद में हम उसका व्याख्यान या अर्थ बतलाते हैं। Okay? ठीक है, We'll stop here for today. We'll take a minute to pray. और हम यहाँ पर आज रोकते हैं और थोड़ा समय प्रार्थना में हम व्यतीत करेंगे। We'll continue with lesson 8 tomorrow. और अध्याय 8 हम जो है कल आगे बढ़ाएंगे। I hope we will be able to finish by Friday. और मैं आशा करता हूं कि शुक्रवार तक हम इसे समाप्त कर लेंगे। I think we will. Let's see. All right. Okay, let's pray together. और आइए थोड़ा समय हम मिलकर प्रार्थना करें। Would you all like to stand? आप लोग खड़ा होना पसंद करेंगे? All right, let's just pray. Pray in the Holy Spirit. Pray. Listen, आइए हम प्रार्थना करें, अन्य भाषा में थोड़े समय प्रार्थना में बिताएं। thank you, Jesus. Thank you. Father, we just thank you for everything that's being imparted to us in our spirits. पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, विशेषकर वो बातें जो आत्मा में हमारे लिए जोड़ी गई। Thank you, Father God, that line upon line, precept upon precept, you're laying your word into our hearts. और परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि पंक्ति के ऊपर पंक्ति, एक सतह के ऊपर दूसरी सतह, आप अपने वचन को हमारे हृदयों में बसाए जा रहे And हैं। Father, in Jesus' name, I speak increased strength into the inner being of each and every person. और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक जन के अंदर में प्रभु हम आपके बल को बोलते हैं। That we'll be strengthened with might by your spirit in our inner man. और परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्य के अंदर में और बल प्रदान होने पाए। That by your word, oh God, we'll become strong in our spirit. और परमेश्वर आपका वचन हमारी आत्मा के अंदर में और दृढ़ होने पाए। Father, I pray over each one here that we will be mighty and strong in the Lord. और परमेश्वर, हर एक जन जो यहाँ मौजूद है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम प्रभु में मजबूत और बलवंत होने पाए। That when each one goes from this place, they will go as mighty warriors for the kingdom. परमेश्वर, जब यहाँ से लोग जाते हैं तो आपके राज्य के लिए शूरवीर योद्धा
बनकर जाने पाए, that they'll go forth, Lord, as mighty warriors who are equipped for battle. और परमेश्वर एक शूरवीर योद्धा जो युद्ध के लिए तैयार है, उस समान वो यहाँ से जाने पाए, They'll go anointed and empowered by the Spirit. और वो आत्मा के अभिषेक में अभिषिक्त होके जाएं, Father, that you will use each one to do great exploits. और हर एक को आप बड़े विस्फोटक कार्यों के लिए इस्तेमाल करें, God, that you will use each one to extend and expand the kingdom of God. और परमेश्वर आप हर एक जन को राज्य की बढ़ोतरी और फैलाने के लिए इस्तेमाल करें, That wherever they go, Lord, the enemy will retreat. परमेश्वर जहां कहीं वो जाते हैं शत्रु पीछे कदम करने पाए, That they will advance your kingdom. और ताकि तेरा राज्य विकास करने पाए, That you fill them with great wisdom और परमेश्वर आप बड़ी बुद्धि से उन्हें भरें to extend your kingdom. और आपके राज्य को बढ़ाने के लिए We thank you, Father. हम आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you that they are carriers of your presence. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये आपकी उपस्थिति को लेकर चलने वाले हैं, They're carriers of your grace and your anointing. और आपके अनुग्रह और आपके अभिषेक को लेकर चलने वाले हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। Amen. आमीन।